Hello students of class 10th. I hope so that you all are fine and doing your work positively at your home. Students, today I am going to start the chapter number 7, Coordinate Geometry. In this chapter, before starting the exercise, firstly we will discuss some important points which is related to this chapter. Firstly, there is a question how to calculate the distance between 2 points, that is known as distance formula. Distance formula between 2 points. Distance formula. Between 2 points. A x1 comma y1 and B x2 comma y2. Distance formula between 2 points AB. The required formula is square root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. With the help of this formula we can calculate the distance between any 2 points. 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है इस फॉर्मूले से. अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दिस इज फॉर्मूला नंबर 1. नंबर 2, कॉलिनियरिटी, कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर points. 3 points A, B and C are said to be collinear if the sum of 2 small distances is equal to the third distance. Means you will calculate with the help of distance formula AB, BC and AC, and you will observe that if the sum of small distances is equal to the third distance, दो small distances का sum अगर third distance के equal है तो points collinear है, otherwise not collinear नहीं है. Point number 3, any point on x axis. x axis पर कोई point हमेशा x0 होगा. Any point on y axis, y axis पर कोई point 0, y होगा. As a journal you can learn any point on x axis पर always y ordinate 0 होगा और any point on y axis पर x coordinate that is abscissa 0 होगी हमेशा. Is that clear? One thing is also important. How to prove that the given points, suppose you are having 4 points. Suppose 4 points are given. 4 points given हैं. So then for a square के लिए what you will do? All 4 sides and diagonals are equal.
मीन्स आपको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यू विल प्रूव दैट ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। रोम्बस के लिए क्या करेंगे? रोम्बस के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल अनइक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are unequal। रेक्टेंगल में क्या करेंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल्स कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। जैसे प्रॉपर्टी नंबर फॉर इक्वलेटेड ट्रायंगल, suppose 3 points are given। 3 points A, B, C are given। 3 points given हैं। With the help of distance formula you will calculate AB, BC and AC for equilated triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है आपका √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड स्क्वायर फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एनी टू साइड्स आर इक्वल। कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। स्केलर ट्रायंगल के लिए स्केलर ट्रायंगल ऑल साइड्स आर डिफरेंट। all sides are different। These formulas we will apply in our coming chapter number 7 in exercise 7.1 coordinate geometry। exercise 7.1 में we are going to apply these formulas। now I am going to start the exercise 7.1। exercise 7.1, our first question is find the distance between the following pair of points। question number 1, first part, given points। आपको points given हैं A 2,3 and B 4,1। points given है और हमें calculate करनी है distance दोनों के बीच में। ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है ये हमें बतानी है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ए बी क्या होगी? फॉर्मूला
अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हेयर x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4 है एंड y2 की वैल्यू 1। x2 4 है और y2 आपका 1 है। वी आर गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज x1 x2 एंड y1 y2। x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 4 होता है, 4 प्लस 4 8। वी कैन राइट 8 इक्वल्स टू 4 टू जा 8। 8 को लिख सकते हैं 4 टू जा 8 एंड 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके Similarly, second part you can solve. Third part I am going to solve of this question. Part number 3rd. Given points. Points given है आपको A, B और B के कोऑर्डिनेट है -a, -b और हमें डिस्टेंस निकालनी है AB। सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4a स्क्वायर वी कैन टेक 4 कॉमन, 4 बाहर ले लीजिए, स्क्वायर रूट से 2 आ जाएगा अंदर, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स AB एंड -a, -b। ओके, नाउ the question number 2nd. I am going to start of this exercise. Question number 2nd. Find the distance between the points 0 0 and 36 15. Question number 2. Given points, पॉइंट्स गिवन है आपको A 0, 0 एंड B 36, 15 और हमें डिस्टेंस निकालनी है दोनों की। तो AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 आपका 0 है, y1 आपका 0 है, x2 आपका 36 है और y2 आपका 15 है। लगा दीजिए, इज इक्वल्स टू 36 माइनस 0 36 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का होल स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 36 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर दैट इज 15 इंटू 15 225। ऐड कर दीजिए दोनों को, (1521) विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 39
तो क्या आ गई है दोनों के बीच के डिस्टेंस? 39 यूनिट्स आ गया है। आगे क्वेश्चन है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2. Section 7.2, come on the section 7.2 which is available on page number 156, distance formula. In this diagram, figure 7.1, students, two towns are there. The location of town A is the intersection of direction north and east. In the figure 7.1 it is given that, so the coordinate of town A is 0, 0 and the location of town B, which is lie in the direction of north and east. On x-axis it is 36 kilometer. If we will take east on x-axis and north on y-axis, as usual in this diagram it is given, and on y-axis it is given 15 kilometer. So the coordinate of point A is 36, 15. तो A के कोऑर्डिनेट्स B के A के कोऑर्डिनेट तो 0, 0 है, टाउन A के कोऑर्डिनेट 0, 0 है एंड टाउन B के कोऑर्डिनेट 36, 15 है, और जो कि हमारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी इट इज गिवन दैट, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज सेम एज द गिवन डिस्टेंस. सो डिस्टेंस बिटवीन टाउन AB इज 39 यूनिट्स. क्या हो जाएगी? 39 यूनिट्स हो जाएगी दोनों के बीच का डिस्टेंस. नाउ द व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड? द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दैट, इट वाज द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, these 3 points are collinear. We have to check in this question given points are collinear or not. ये हमें चेक करना है. तो for collinear we know that 3 points are said to be collinear if the sum of two small distances is equal to the third distance. तो calculate given points. आपको points given हैं. A के coordinates 1, 5, B के coordinate 2, 3 and C के coordinate -2, -11. C के कोऑर्डिनेट -2, -11. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व. ए बी कैलकुलेट करिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से. ए बी दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए. 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 - 1 1 का होल स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर 4, 1 + 4 अंडर रूट 5 यूनिट्स आ गया आपका. सिमिलरली बी सी निकालिए बाय द सेम फॉर्मूला. x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर, -11 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस -11 और -3 -14 का होल स्क्वायर 196. दोनों को ऐड कर दीजिए, 212 अंडर रूट में आ गया आपका यूनिट्स. सिमिलरली डिस्टेंस AC कैलकुलेट करने जा रहे हैं बाय द सेम फॉर्मूला. x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट इज -2 - 1 का होल स्क्वायर, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, -11 - 5 का होल स्क्वायर, -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर 9, -11 और -5 -16 का होल स्क्वायर 256. नाउ वी कैन ऐड 256 + 9 265 units. We are observing that these two distances are small and here the sum of these two distances is not equal to the third distance. Here √5 plus √212 is not equal है √265. So
given points are not collinear. Up to question number 3rd, students, you will complete at your home. Revise all these formula and you have to write all these formula in your fair notebook. Thank you. Have a good day.